everything is about you, Urfi, and in this tone, because this is my life. Of course not everything is about you. But it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। अभी हाल ही में करण जौहर का शो है द ट्रेटर, उसमें उर्फी जावेद और रेबल किड को तो आप जानते होंगे। इन दोनों की काफी तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है। उसी को लेकर द रेबल किड ने एक वीडियो बनाई है और ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है उसको एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देखिए। तुम दोनों बस मुझे ही नहीं बता रहे हो, हमारा एक ग्रुप है, ऐसे कैसे कर सकते हो? Babe, I have met you 2 days ago. I don't consider this to be a group. A. B. I'm crying. Have some empathy. I know it's really difficult, but have it. If it's a group, if we're friends, have some empathy. Nahi hai empathy. And then I'm like, not everything is about you, Urfi. And in this tone, because this is my life. Of course not everything is about you. Girly pop in my life. My life. Anyway, I'm really pissed. Can you see I'm fuming? I'm fuming. But उस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, because उस टाइम पे यार मेरी प्रॉब्लम ना अलग थी। मेरी प्रॉब्लम मेरी मम्मी थी। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उर्फी जावेद को अगर मैं नहीं पसंद हूँ अब तो। I couldn't care less. Anyway, we come back to the palace, and again, this also you don't see in the show, but it has happened in the show, right? उर्फी calls me and she's like, "भाई पूर्वा इधर आओ." और मैंने बोला उर्फी आराम से, and that's all I've said कि उर्फी आराम से. In this tone by the way, and she goes off. तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की. She has shouted all this, shouted on my face, right, on my face. And after that I've started crying because, by the way, if you don't believe me that Urfi has fully shouted this, just think कि अगर उर्फी सिर्फ जन्नत और जैस्मीन को जाके ये सारी बातें बोल रही थी तो बाकी सबको कैसे पता चला? How did रफ्तार नो कि उर्फी ने मेरे बारे में ये सब उल्टा सीधा बोला है? Why was he consoling me? It happened in front of everybody, and she in front of everybody shouted at me, which is why everybody knew. So see, logically I'm making full, I don't lie in my story time. And मैं रो रही हूँ, रफ्तार पाजी आता है and he's like, कोई बात नहीं, वो गंदी है तू. जब अपूर्वा मखीजा द रेबल किड का ये वीडियो अपलोड होता है उसके बाद उर्फी जावेद रिप्लाई करती है और अपनी प्रोफाइल पर एक स्टोरी लगाती है और बोलती है कि जब हमारे बीच में ये चीजें चल रही थी उसके बाद ही मैं इससे कितने अच्छे ढंग से बात कर रही थी। ये कुछ नहीं है, ये फेक है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें कुछ नहीं है, इसको मशहूर होना है और अपने आप को बड़ा दिखाना है। इस प्रकार की कुछ बातें करती है। I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain, which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened. One day before, Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है. Then next day when she started crying, whatever, I went to her nicely कि क्या हुआ है बताओ. I'll tell you guys one thing. It's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है. मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक. मेंटली इट्स फनी. So it's just a big insecurity for me. And when she shouted at me, she abused. मतलब कि जाना यहाँ से, क्या है तुझे? She slapped at me in front of the casting crew. And when she shouted at me कि जाना यहाँ से, she snapped at me like that. And I just felt, I don't know, like I felt really disrespected. And of course it was my ego. मेरी ego की वजह से जो हुआ, whatever I spoke, and मतलब maybe I shouldn't have said those words, but I do demand respect, and it's an insecurity. That's it. I don't really care, and I don't know why is it affecting me so much. Hate on the internet has never really affected me, but for some reason it's just, I don't know what's happening. आपने ये दोनों वीडियो देख ली होगी, उर्फी जावेद की भी और द रेबल किड की भी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्योर पब्लिसिटी स्टंट है। ये शो नया है और इस शो को लोगों तक पहुंचाना है। जब तक कोई बढ़िया सी तगड़ी सी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा और यूट्यूबर इसके ऊपर कैसे वीडियो बनाएंगे। तो ये उसी प्रकार का एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। ये दोनों इस शो की पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं मिलकर। आप कुछ टाइम बाद ही देखेंगे कि उर्फी जावेद और द रेबल किड दोनों एक
दूसरे से हंसते हुए गले मिलते हुए नजर आएंगे किसी ना किसी पार्टी में। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है कि ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है या रियल में इन दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी हो गई है या कोई झगड़ा हो गया? मुझे कमेंट में अपनी राय अवश्य दे। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दे, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर ले। मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार।